ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐ ਲੈ ਸਪੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਕਲੀ ਤੂੰ ਲਾਈਏ ਸੱਸ ਦਸੀਆਂ ਵੇਲਾ ਮਿਆਣੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੰਗਨ ਦਿਆ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਹਲੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਗਰਾ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪੱਠਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪੱਠਾ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਬਸ 2-3-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। मासूमा जब शॉपिंग करती है ना मुझे उस वक्त ज्यादा मजा आता है सीरियसली एटलीस्ट हमें चीजों के रेट्स पता चल जाते हैं ऐसे जो हमें नहीं पता होते। खाना इतना अच्छा बनाती है, आप एक दफा टेस्ट करेंगे आप कहेंगे इधर से बन के आए अरे खाना। वाह वो तो देखने से इतना डिलीशियस लग रहा होता है तो फिर डेफिनेटली हर चीज को ना बड़े अच्छे तरीके से बनाती ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी अरोज। तो आप देख रहे हो अरोज फैमिली व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਇਮਾ ਖਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ना आंधी ना तूफान, आपकी अपनी मासूमा जान। कितना महंगा होता है ये शादी का जोड़ा जिसे पहनने के लिए एक लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है। आज का करते हैं व्लॉग शुरू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ जी गाइस, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਚਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਮਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ नहीं। मेरे नाल मासूमा, मम्मा साइमा। गाइस आपकी मासूमा निकलने लगी है रोज के साथ। पता नहीं रोज हमें कहाँ लेके जा रही है, रोज किथे लेके जा रही है? लेके जा रही ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਐ ਲੈ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨੀ? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਭੈਣਾ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੰਮਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਲੌਗ ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗੇ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਫੈਨ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਸਕੀਆਂ। ਦੱਸ ਫੈਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਸੂਮਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਤਲੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਫੈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮਾ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸੂਮਾ ਕੋ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਦੱਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਚੌਂਕ ਚ ਬੁਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚ ਬੁਰਜੀ ਚੌਂਕ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਨਾਜ਼ਗਾ ਮਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੌਣ ਦਈਆਂ। ਐ ਮੇਰੀ ਨਕਲੀ ਤੂੰ ਲਾਈਏ ਸੱਸ ਦਸੀਆਂ ਵੇਲਾ ਮਿਆਣੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੰਗਨ ਦਿਆ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਐ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਕਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਰਾਮਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਗਰਾ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਮਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਕਲੀ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਬਿਸਤਾਨ ਥੀਏਟਰ ਜੁਮਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੌਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੈਨ ਨੇ ਸਭ ਆਣ, ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲੇ ਫੈਨ ਵੀ ਸਭ ਆਣ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੇ ਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣਾ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਸ਼ੋਅ ਨੇ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਡਬਲ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲੇਗਾ, 3 ਦਿਨ ਜੁਮਾ, ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਸਭ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के पास। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਲਿਬਰਟੀ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗਜ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੈਸੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚਾਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕਰता है लाहौर। लग रहा है ना माशाल्लाह से यूरोप कंट्री से आ गए हो तो बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। व्लॉग मिस नहीं करना, सब्सक्राइब कर नहीं रहे ना ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਭ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ 1 ਲੱਖ ਫੋਲੋਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, 1 ਲੱਖ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲੀਜ਼ ਸਭ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਅਰੂਜ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਭ ਲੋਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਸੂਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਿਲਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੰਮਾ? ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾ ਦੇ। ਬਸ ਚਾਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਏਡੀ ਉੱਤੇ ਫਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਬ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਵੋ ਗਾਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਲੜਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਾਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। बताओ मसूमा। ਫੈਂਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਦੱਸ ਮਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੁਝ ਖਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸ਼ਲਿਕ ਤੇ ਐਗ ਫੋਰ ਰਾਈਸ ਤੇ ਨਾਲ ਮਨਚੂਰੀਅਨ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਐਡੀ ਕਰ ਤੂੰ ਚੁੰਨੀ ਕਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਬਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਚਿਲ ਮਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਭੱਠਾ ਚੌਂਕ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਤੇ ਭੱਠਾ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਬਸ 2-3-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ 2 ਦਫਾ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠ ਪਈਏ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मिलने अंदर जा। गाइस हम मैडम के रूम में आ गए। तो ये सरप्राइज था हमारे मुल्क की माशाल्लाह आर्टिस्ट मैडम आफरीन परी, आप लोग सब लोग जानते हैं इनको। तो आज इनके साथ हम मुलाकात करने के लिए हैं। जी आपी अस्सलाम वालेकुम जी। फलक रोज के जितने भी फैंस हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू वेरी मच फलक कि आप आए और आप तीनों ने आकर हमें शूट करने का टाइम निकाला। आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप तीनों इतनी प्यारी लग रही होती है। मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ और इतना मज़ा आता है ना जब अच्छी अच्छी कुकिंग करते हैं। कुछ खाना हमें भी भिजवाया करें इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप बताएं जो खाना होगा आपके लिए स्पेशल बना के अच्छा भेजेंगे। मासूमा जब शॉपिंग करती है ना मुझे उस वक्त ज़्यादा मज़ा आता है सीरियसली। एटलीस्ट हमें चीज़ों के रेट्स पता चल जाते हैं ऐसे जो हमें नहीं पता होते। ये स्पेशली खुद ही जाती है हर चीज लेने के लिए ना, इसे पसंद नहीं आती और किसी की। ग्रोसरी तो ये वगैरह कहती मैं खुद ही लेके आऊंगी और खुद ही खाना इतना अच्छा बनाती है। आप एक दफा टेस्ट करेंगे आप कहेंगे इधर से बन के आए अरे खाना। वाह, वो तो देखने से इतना डिलीशियस लग रहा होता है तो फिर डेफिनेटली हर चीज को ना बड़े अच्छे तरीके से बनाती। तो मैडम आफरीन परी शालीमार थिएटर में काम कर रही है और हमारे जितने भी फैंस हैं इनका ड्रामा देखने के लिए भी जरूर आए, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। इनका हॉल ओवर पैक, टिकट्स नहीं मिल रही। तो बहुत प्यारा ड्रामा है। और सबसे पहली बात ये कि
खुशबू खान साहिबा जो हमारी मोस्ट सीनियर स्टार हैं, और जो हमारी साइमा जी हैं जो हमारी बहुत मोस्ट सीनियर स्टार हैं, आफरीन परी यानी कि मैं भी एक मोस्ट सीनियर स्टार हूँ। तो हम लोगों का तीनों का जो है ना फर्स्ट टाइम इकट्ठा कॉम्बिनेशन, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ड्रामे में, और ड्रामा इतना अच्छा है, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत आउटस्टैंडिंग है। खुशबू जी भी बहुत प्यारी आइटम कर रही है, और सिल्क भी हैं इसमें हमारे साथ, साथ अमर शहजादी हैं और नीरब शाह है, जरी शाह हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस आप देखना चाहते हैं। और एक और चीज़, फलक आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आप ड्रामा कह रही हैं 24 से? हाँ जी 24 से। 24 जुलाई से इनका ड्रामा आने वाला है जी शबिस्तान थिएटर में। चिड़िया या चिड़िया? चिड़िया। अच्छा जी, ड्रामा बहुत आउटस्टैंडिंग है क्योंकि मुझे उसका थीम ही बहुत पसंद आया। जो थिएटर्स की एक हमारी बहुत स्पेशल, खूबसूरत और बहुत प्यार करने वाली बड़ी मासूम सी और बड़ी लविंग कम्युनिटी है ना, शीमेल्स की कम्युनिटी है जो, वो लोग परफॉर्म करेंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि हम आर्टिस्ट होते हैं और साथ एक फीमेल होती हैं कोई भी, या 2 फीमेल्स होती हैं, या फीमेल मतलब इकट्ठी नहीं हुई, मतलब 5 फीमेल्स का फर्स्ट टाइम एक ड्रामा जो है वो लगने लगा है शबिस्तान थिएटर में, और उसमें हमारी फलक अरूज जोनसी हैं वो लीड रोल कर रही हैं। और ये आपको ये तो पता होगा कि ये आर्टिस्ट परफॉर्मेंस कैसी है, आर्टिस्ट कैसी है, ये तो आपको आगे पता चलेगा। मेहनत बहुत करी, इनकी रिहर्सल्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं क्योंकि बहुत बिग सब्जेक्ट है। डॉक्टर अजमल मलिक का, और मेरी तरफ से उन्हें भी बेस्ट विशेज़, और सईद मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं इसके प्रोड्यूसर हैं, और मैं सराहती हूँ उनकी इस खूबसूरत काविश को कि उन्होंने इतनी खूबसूरत काविश की और ये एक खूबसूरत सब्जेक्ट लेकर आए। आप अच्छा फलक ये बताएं कि आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड तमाम चीज़ें होंगी उसमें, क्या बताया जाएगा कि ये सारा सिस्टम कैसे होता है, आप क्या चीज़ें फेस करते हैं? वो अभी इन्होंने मतलब सब्जेक्ट लिखा हुआ है। हाँ। तो उनके रिहर्सल। अच्छा भाई, डॉक्टर साहब तो किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, मैंने उनके बहुत बहुत प्यारे प्यारे ड्रामे किए हैं, और ऐसे ऐसे रोल्स आप नूर जहाँ मैंने किया जो मेरे क्रेडिट का ड्रामा है। बहुत अच्छा आपने किया, वो कैरेक्टर भी बहुत अच्छा, और गेटअप इतना अच्छा लगा ना इनको। फाइनल बच्चा जमूरा, मौला जेट और काला बाजार, बहुत सारे सब्जेक्ट्स उनके मैंने किए हैं। बहुत ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं, मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा है जो यकीनन बहुत खूबसूरत होगा, और फलक में खुद भी देखने होंगे। हाँ जरूर। तो आप लोग भी आइएगा और ड्रामा जरूर, क्योंकि देखें होता क्या है कि जब आप कोई अच्छी और नई और अलग चीज़ करते हैं ना, समथिंग यूनिक, समथिंग चेंज, उसमें हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। कभी क्या होता है कि जब हम चेंज नहीं देते, लोग कहते हैं चेंज नहीं, लेकिन जब हम चेंज देते हैं तो फिर उसमें जब आप आएंगे, हमें अप्रिशिएट करेंगे, वो अच्छा जाएगा, तो फिर हम मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रोड्यूसर स्टार्ट में डूब जाए और उसको उस चेंज पे कोई ज़्यादा बेनिफिट भी ना आए और कोई रिस्पॉन्स ना आए, तो वो फिर अगली चीज़ करने की भी कोशिश नहीं करता। हाँ जी, तो हमें आपसे बहुत रिक्वेस्ट है इस चीज़ की, फलक का ड्रामा आपने लाजमी देखने जाना है और मेरे कहने पे देखने जाना है। मैडम बहुत अच्छी ने, ते मैडम ने साड़ी बड़ी रिस्पेक्ट की है, ते अच्छा, मेरा शुरू से ना फलक आपकी बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे इतना लव है ना आप लोगों से, इतना लव है ना, मुझे इतने स्वीट और प्यारे लगते हैं ना। सबसे पहली बात कि बहुत सारे लोग आपस में झगड़े भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं सारे, लेकिन आप लोगों के बोलने का तरीका, आप लोगों का अगले बंदे को रिस्पेक्ट देने का तरीका इतना खूबसूरत और इतना मीठा होता है ना। हम लोग कभी कभी शाउट भी कर लेते हैं, स्ट्रेट भी बोल लेते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा मीठा बोलते हैं, हमेशा ही बड़ा प्यार। आप लोग खुद रिस्पेक्ट के काबिल हैं, हम लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं आप लोगों के साथ। काफ़ी मैडम के साथ तो मैंने काफ़ी काम किया है, मेरा और स्टार मैडम का इकट्ठा था, तो महफिल में हमने इकट्ठा ड्रामा स्टार्ट किया था। बिल्कुल 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 जी, तब से लेकर अब तक हमारा कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे पहले दिन से मिलते हैं इसी तरह हम इसी तरह मिल रहे हैं। में तो ऐसी कोई बात शुरू से नहीं। तो साइमा तुम बताओ मैडम के बारे में, तुम कह रही थी मैडम मुझे बहुत पसंद है, मैंने मैडम आफरीन से मिलना है, तो अस्सलाम मैडम आफरीन परी ये हैं। हाँ जी गाइस, ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਆਫਰੀਨ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਨਿਆਜ਼ ਤੇ ਭਲਕ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੰਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਾਇਮ ਦائم ਰਵੇ। कि आपको मैं बता नहीं सकती, एक मूवी टाइम था कि फलक मतलब कि बिल्कुल सिंपल ड्रेसिंग और लिमिटेड चीज़ें, मतलब कि घर फैमिली के लिए सेव करना, सारा कुछ अपने ऊपर कम इन्वेस्ट करना। अब अल्लाह ताला इतना खूबसूरत टाइम लेकर आया है कि वो इतनी प्यारी लगती है। मेरे फलक जो हीरोइंस उनसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, उनसे ज़्यादा प्यारी लगती है, अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी ड्रेसिंग, अच्छे बाल अच्छे। अब तो उसका अपना मेकअप आर्टिस्ट, अपना हेयर ड्रेसर, हर चीज़ है।
ये अल्लाह ताला की अता होती है, जब इंसान सब्र करता है ऐसे ना है। और मेहनत करता लगा रहता है तो अल्लाह उसका अजर जरूर देता है। बिल्कुल इसमें अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे, मेरे दिल से दुआएं आपके साथ। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक वो आपकी जो दिल में ज़्यादा ख्वाहिश है ना कि मेरी ये पूरी हो, अल्लाह पाक आपकी वो भी पूरी करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह मुझे वैसा बना दे जैसा वो मुझे चाहता है। हाँ, इंशाअल्लाह। आमीन, अल्लाह अपने आमीन। बंदे को वैसा बनाए जैसा वो देखना चाहता है और मुझ में ऐसी चीज़ें आ जाएं कि जैसे जिससे मतलब मैं वो हर वो काम करूँ जिससे मेरा राज़ी हो, और मैं वो कोई भी काम ना करूँ चाहे मेरा काम ही है, चाहे मैं वो काम ना करूँ जो उसको पसंद नहीं है, चाहे मेरा काम ही है, हाँ लेकिन जी। क्या उससे उस तक अल्लाह पाक मेरे वसीले बना दे ऐसे कि मैं आमीन। हर उस चीज़ को खैराबाद कह दूँ जो उसको पसंद नहीं है, मैं हर वो चीज़ करूँ जो उसको पसंद है। आमीन। तो इसलिए आपके लिए भी ढेर सारी दुआएं। अच्छा, आपके व्लॉग्स मुझे बड़े पसंद है। अच्छा भला कि मुझे भी, आप तो मेरा इंटरव्यू कर ही रही हो, साथ साथ मैं भी कुछ पूछूं, आपके जी, फैंस सुनना हाँ चाहते जी, हाँ जी, हो? पूछे। अच्छा भाई, किसके ज़हन में आया ये आइडिया कि हम व्लॉगिंग स्टार्ट करें? व्लॉगिंग तो मसूमा हमारी, क्योंकि तुम्हें पता है मैं एक एंकर भी रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा कीड़ा है ना, हाँ। तो मुझे भी कोशिश करने की आदत है। वो मसूमा ने बोला है कि व्लॉगिंग करनी है तो ये ड्रामा बंद हो गया था ना जब मैडम उसने सारी ने थिएटर बंद कर दिया ख्वाजा सरा के गाने, तो तब हमने फिर ब्लॉग शुरू कर लिया। अच्छा, अच्छा, हाँ, तब तब ज़हन से में शुरू आया। किया हमने। तो ये तो आपको बड़ा, आपको लगा नहीं कि आपने बहुत लेट शुरू किया? हाँ, लगा तो था, लेकिन हाँ। अभी ना जैसे लेट शुरू किया ऐसे हमें पब्लिक ने प्यार किया, जितने भी फैंस थे अच्छा, ना। फैंस एंड फ्रेंड्स आपके लिए एक और कि इनका चैनल जो है जो ऑलरेडी चल रहा था वो इतना अच्छा चल रहा था और वो सब मतलब कि मोनेटाइज भी हो गया था, मगर वो हर चीज़ हो गई थी लेकिन वो ब्लॉक हो गया एक मिस्टेक की वजह से। फिर अभी वो रिकवर नहीं हो सकता, अभी तक अपील में है, अल्लाह ताला करे कि वो हो जाए। आमीन। लेकिन आपने इस चैनल को इतना हाइट पे ले जाना है कि ये पिछले वाले को भूल जाए। अरुण फैमिली। हाँ, अरुण फैमिली व्लॉग्स को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को भी दबाना है। इसमें आपको खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मैं इनके तमाम ये जो नोक-झोंक देखती हूँ, नई नई चीज़ें देखती हूँ। अब जैसे कि ये मेरे पास आई हैं तो बड़े अरसे के बाद मेरी किसी चैनल पे किसी से मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। इसी तरह और हमारे यहाँ बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत स्टार्स हैं, उनसे भी आप मिलेंगे। तो हमें चाहिए कि इन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि इन्हें हमारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे जो है। बंदा मेहनत करके खाता है ना, जो बंदा मांग नहीं रहा किसी से, उस बंदे को लाजमी सपोर्ट किया करें। बाकी तो जो मांग भी रहा उसकी भी हेल्प किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया हुआ होता है कि आप किसी की हेल्प कर सकें। जब आप किसी की हेल्प कर सकते हैं ना तो ज़रूर करनी चाहिए, वरना हम भी उनमें हो सकते हैं जो हेल्प मांगते हैं, जी, तो इसका शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसे ही तो है। फलक की जो आपने है ना अरूज फैमिली व्लॉग, उन्हें ज़रूर लाइक करना चाहिए और वॉच भी करना है। लव भी हो गया, आपकी लव भी हो थैंक यू गया। सो मच। और अच्छा, आप इसमें कमेंट्स करके ये भी बताया करें कि आप किन किन सेलिब्रिटीज से मिलना चाहते हैं, क्योंकि कोई बंदा ऐसा नहीं जड़ा इन्हों नहीं जानता। एवरीबडी नोज अबाउट फलक, तो हर बंदा जानता है कि फलक एक स्टार है और एक टाइम गुजरा है हम लोगों के साथ, ऐसे और ही। हम लोग पता किस तरह है, जैसे एक फैमिली होती है। आज तक गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि मैं छोड़ भी जाती हूँ ना ड्रामा, कहीं करती भी नहीं हूँ तो लोग ना पीछे तारीफ करते हैं। मैंने हाँ। कभी ये नहीं होता कि मुंह के ऊपर, सबके साथ इतना प्यार किया। जैसे आप ही, मैं नहीं भी हूँ ना तो आप ही अच्छे लफ्जों से मुझे याद करेगी। Exactly. हाँ। और इसका पता क्या हाल है, कोई 4 साल बाद भी मिलता है ना, ऐसे ओए तू, हेलो, कितनी सी इतनी देर कितने, मतलब इस टाइप का हमें होता है कि यार तुम किधर चली गई थी, तुम क्या कर रही हो। ऐसे है। तो ये बहुत 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 प्यारी स्टार। अच्छा, एक तो होता है ना नेचर वाइज अच्छा, तबीयत वाइज अच्छा बंदा, ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है यार, क्या बात है। मैं कहती हूँ एनर्जेटिक डांस, बीट के ऊपर डांस, रिदम में डांस, ये कम लोगों को आता है। नाचना तो सबको आता है, लेकिन लय पे नाचना कम लोगों को आता है। तो ये इंक्लूड होती है उन लोगों में कि जिसे रिदम पे, और सबसे बड़ी बात ये सीखती नहीं है। ये कैसी बात है? हाँ, ये गॉड ये गिफ्ट है ये इसको मुझे। गॉड गिफ्टेड है ना, कभी भी ना सीखा फिर। कभी नहीं सीखा। और अच्छा, नए से नया गाना, एक गाना मैंने इसका सुना था, खबारा दे विच मेरे चर्चे, और इसने इसमें बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस महफिल थिएटर में किया था। हाँ, मैं हाड़े पापा था। हाँ, तो मैंने कहा यार ये भी गाना है। हाँ। पहले तो मतलब कि कलेक्शन निकालनी, उसको याद करना, फिर मैडम की इतनी कलेक्शन इसने की है, मैडम जी। जहाँ के गाने इसने बड़े बड़े प्यारे परफॉर्म किए हैं। फिर एक टाइम ऐसा भी आया हम कि लोगों कुड़ियाँ ने- तो बहुत ही पब्लिक फलक दी आंधी हुई और थी। गाइस, हम मैडम ने और मैंने ड्यूट गाना भी किया हुआ है। हाँ, वो वाला वो वाला चन चन चनन छटक छटक हाँ। टोर दमादी मड़क, वो यूट्यूब पर YouTube पे है, है। आप उसको चेक कर सकते हैं। आप मेरे नाम से सर्च करेंगे, फलक के नाम से सर्च करेंगे, वो गाना आ जाएगा। हाँ, चन चनन उसमें छटक उसमें छटक। फलक भी इतनी सी थी और मैं भी। बहुत ज्यादा तकलीफ थी मैं तो, इतनी बहुत सी मजे थी। का। लेकिन हम लोगों ने काफी मेहनत की थी उस गाने पे, तो बड़ा हाँ अच्छा जी, रिस्पॉन्स हाँ आया था। जी। कुछ लोगों ने कहा था नहीं करना, लेकिन हाँ। मैंने किया था। हाँ, मैंने बड़ा कहा- बड़ा कुछ अच्छा लोगों गाना ने हुआ। कहा था कि नहीं, मैंने कहा रिस्पॉन्स नहीं। कैसा था फलक, कितना मजे का बहुत response अच्छा था। रिस्पॉन्स था।
लेकिन ना जब हम अंदर जाते थे एकदम लोगों की चीखें निकल जाती थी, ये क्या हो गया है। मेरे ख्याल में पहले मैंने येलो ड्रेस पहना था, आपने ऑरेंज। मैंने ऑरेंज पहना था, बहुत इतना अच्छा। अच्छा हो गया मुझे याद। जाने लगे हैं मैडम, आफरीन बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। ओके अल्लाह हाफिज। हाँ जी तो गाइस, हाँ जी बाय बाय। तो गाइस हमें थोड़ी भूख लग गई थी। सैमा बार बार पिज़्ज़ा खा रही थी। मैं कहा पिज़्ज़ा बहुत दूर है, लेकिन तू बर्गर खा ला। बर्गर खा के अपना दिल खर चिकन बर्गर खा लगी हाँ आर्डर दिता होया आवे 20 मिनट हो गए ने अल्लाह जाने किस तरह इन्हें आर्डर दिता है वो आ गया। तो ये बर्गर आ गए हैं हमारे। ये मेरा बर्गर है, ये साइमा का। आपकी सुमा तो बर्गर खा रही है। कागज ना खा जाए शुक्र है तुम ही खान लगी। खा लवे ते बर्गर भी टूट गया सारा। जिन्हें खाना ना जल्दी आ जाओ मेरे को। गाइस रोज ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। बहुत अच्छा बर्गर बनया एंड अच्छा बनया। बहुत मजे का खा बर्गर। के फिर ਤੁਹਾਨੂੰ मिली मेरे कॉल आ गई। तो गाइस हम पहुंच गए हैं, अभी आपकी रोज इतने लगी है। आजा मैडम पहले बड़ी लेट हो गई है। गाइस ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਚਿਲ ਕੀਤਾ, ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ 버ਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 버ਗਰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਗੈਰ 버ਗਰਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 버ਗਰ ਸ਼ਰਗਰ ਖਾਦੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮੈਡਮ ਆਫਰੀਨ ਪਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਫੂਲੋਂ की तरह ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮਾ ਛਬਿਸਤਾਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। 2 ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। 2 ਡਬਲ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ 3 ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ। ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰਤ ਤੇ। ਅਰੂਜ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ।